السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے ہیڈ لائن سے۔ میں محمد شہباز شریف صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا، ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کے خاطر انجام دوں گا۔ یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ پرامن انتقال اقتدار کا مرحلہ مکمل، محمد شہباز شریف نے وزیر اعظم کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ ایوان صدر میں علمبرداری کی تقریب، محمد نواز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ اور ارکان پارلیمنٹ کی شرکت، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، مسلح افواج کے سربراہان اور اعلیٰ حکام بھی تقریب میں موجود تھے۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر محمد شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش، مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ وزیر اعظم نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سینئر حکام اور عملے کا تعارف کرایا گیا۔ عالمی رہنماؤں کی وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، ترک صدر رجب طیب ایردوان، ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم، تاجک صدر امام علی رحمان اور فلسطینی صدر محمود عباس کے تہنیتی پیغامات، نیک خواہشات کا اظہار، برادرانہ تعلقات کو تمام شعبوں میں وسعت دینے کا عزم۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی مساق مفاہمت اور مساق معیشت کی حمایت، قوم کو درپیش چیلنجز کے حل کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ پارلیمنٹ سپریم ہے، ہمیں عوام کی توقعات پر پورا اترنا ہے، کسی غیر جمہوری اور غیر آئینی اقدام کی حمایت نہیں کریں گے، عدالتی اور انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ خواتین اور غیر مسلموں کی مخصوص نشستوں کا معاملہ، الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کی درخواست مسترد کر دی۔ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے بروقت ترجیحی فہرستیں جمع نہیں کرائی گئیں۔ اسمبلیوں کی مخصوص نشستیں خالی نہیں رکھی جا سکتی۔ مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں میں ان کی سیٹوں کے تناسب سے تقسیم کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے 4-1 کے تناسب سے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عوام کی ترقی اور خوشحالی کا عزم، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں پنجاب کے پہلے کینسر ہاسپٹل کی تعمیر کا اعلان، بہترین ڈاکٹر اور جدید ترین مشینری لائیں گے، مریضوں کا مفت علاج ہوگا۔ مریم نواز کی گفتگو، سڑکیں بحال، پنجاب خوشحال منصوبے کا بھی آغاز، 6 ماہ میں صوبے کی 153 سے زائد سڑکوں کی تعمیر و مرمت مکمل کرنے کا ہدف۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس میں 626 پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ 65,951 پر بند، 47 کروڑ 28 لاکھ سے زیادہ شیئرز کا کاروبار، مالیت 16 ارب 28 کروڑ روپے سے زیادہ رہی۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت کے خلاف صدارتی ریفرنس پر سماعت مکمل، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ نے رائے محفوظ کر لی۔
निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली दहशत गर्दी, मजीद 124 अफराद शहीद, मजमूई तादाद 30,534 हो गई। ग़िज़ाई किल्लत और नाकाफी तिब्बी इमदाद की वजह से 16 बच्चे जाँ भग। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस और मलेशिया के वज़ीर आज़म का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। वाशिंगटन में भारतीय सिफारतखाने के सामने सिखों का मुजाहिरा, किसानों पर मजालिम के खिलाफ नारेबाजी, खालिस्तान के कयाम के लिए जद्दोजहद जारी रखने का आज़म। भारतीय सिफारतखाने में गांधी के मुजस्समे पर खालिस्तान का परचम लहरा दिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात, कलअदम TTP से मुंसलिक अफगान शहरियों के मुलव्विस होने की तस्दीक। 28 फरवरी को शिमाली वज़ीरिस्तान में मारे गए 6 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। पाकिस्तान का अफगान हुकूमत से एक बार फिर अपनी सरजमीन और शहरियों को दहशतगर्द कार्रवाइयों से रोकने के लिए ठोस इकदाम का मुतालबा। भारतीय वज़ीर आज़म का मकबूजा कश्मीर का दौरा, हुर्रियत क़यादत का मुकम्मल हड़ताल का ऐलान, श्रीनगर में पोस्टर्स चिस्पा। नरेंद्र मोदी मुसलमानों पर मजालिम का जिम्मेदार करार, मकबूजा वादी में सिक्योरिटी के नाम पर सख्त पाबंदियां, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुल्क के बेशतर इलाके सर्दी की लपेट में, कल्लात में पारा -6 और कोयटा में -5 तक गिर गया। बारिशों के एक और स्पेल की पेशगोई, कल से 7 मार्च तक खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बाला इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा के ओहदे का हलफ उठा लिया। मुल्क के 24वें मुंतखब वज़ीर आज़म की हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई। अहवाल बताएंगे आगा मसूद खालिद। हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में हुई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ लिया। मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा, हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली के खातिर अंजाम दूंगा। यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। मोहम्मद शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा वजारत उज़्मा के मनसब पर फाइज हुए हैं। तकरीब में मनसब से सुबकदोश होने वाले निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने खसूसी शिरकत की। हल्फ बर्दारी की तकरीब में मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला और चारों सूबों के गवर्नर समेत पार्टी कायदीन, पार्लियामेंटेरियंस और गैर मुल्की सिफारतकारों ने शिरकत की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी तकरीब में मौजूद थे। वजारत उज़्मा का हल्फ उठाने के बाद वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तकरीब में मौजूद सियासी जमातों के कायदीन और मेहमानों से मिले और मुबारकबाद वसूल की। वाज़ेह रहे कि वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इससे कबल एक बार वजारत उज़्मा जबकि 3 मरतबा वजारत आला पंजाब के मनसब पर फाइज रह चुके हैं। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपनी जिम्मेदारियां संभालनी, वज़ीर आज़म हाउस आमद पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तफसील बता रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में हुई। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने वज़ीर आज़म को सलामी दी।
वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ को वजीर आजम हाउस के अफसरान और अमले से तारुफ कराया गया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दूसरी मरतबा वजारत उज़्मा का मनसब संभाला है। वजीर आजम ने इस अज़म का इजहार किया है कि दरपेश माशी चैलेंजेस पर काबू पाकर मुल्क को तरक्की व खुशहाली की राह पर गामजन करेंगे। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी है और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। तफसील बताएंगे मोहम्मद मजहर अब्बास। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को हल्फ उठाने पर मुबारकबाद दी है। सऊदी वली अहद ने अपने तहनीयती पैगाम में वजीर आजम शहबाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि इनकी क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करेगा। तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दवान ने वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया और दूसरी बार वजारत उज़्मा की जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए मोहम्मद शहबाज शरीफ की सलाहियतों पर एतमाद का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और तुर्किया के बरादराना ताल्लुकात को तमाम शोबों में वुसअत देने के अज़्म का इरादा किया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद पर सदर अर्दवान का शुक्रिया अदा किया। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने भी वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और मलेशिया के देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मलेशिया के साथ तिजारती और सफारती ताल्लुकात के मजीद फरोग का ख्वाह है। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान ने भी अपने तहनीयती पैगाम में इस यकीन का इजहार किया कि मोहम्मद शहबाज शरीफ बहैसियत वजीर आजम पाकिस्तान की तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। उन्होंने दोनों मुल्कों के दोस्ताना ताल्लुकात में इजाफे के आज़म का इरादा करते हुए मोहम्मद शहबाज शरीफ को ताजिकिस्तान के दौरे की दावत दी। सदर इमाम अली रहमान ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तवील मुद्दती शराकत दारी को मजीद मजबूत करेंगे। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते हुए पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फलस्तीनी सदर ने अपने पैगाम में कहा कि दोनों मुल्कों के अवाम तारीखी और मजबूत बंधन में बंधे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा फलस्तीनी अवाम के हकूक के लिए आवाज़ बुलंद की है। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बतौर सियासी रहनुमा हमेशा उसूलों की सियासत का अलम बुलंद किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ की इंतज़ामी सलाहियतों की एक दुनिया मुतरिफ है। आगा मसूद खालिद की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। मुनफरिद सियासी बसीरत और गैर मामूली इंतजामी सलाहियतों के हामिल मोहम्मद शहबाज शरीफ की पहचान जमहूरी इक़दार की पासदारी और अवामी खिदमत के जज्बे से इबारत है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हमेशा एक ज़ीरक और कोहना मश्क सियासतदान की हैसियत से पार्लिमान की बालादस्ती और सियासी अफाम तफहीम की इक़दार को परवान चढ़ाने के लिए अपनी तवानाइयां सर्फ की। अपने सियासी सफर में मर्द आहन मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त की, मगर जमहूरी रवैयों में बिगाड़ का रास्ता हमेशा रोका। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में जमहूरियत के इर्तकाई अमल में बर्दाश्त और खुद एहतसाबी का दामन हमेशा मजबूती से थामे रखा और कौमी असम्बली में बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ गैर जमहूरी रवैयों के सामने एक मजबूत दीवार बनकर खड़े हुए। पीडीएम हुकूमत में मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद तमाम जमहूरी कुव्वतों को साथ लेकर मुल्क को शदीद मुआशी बहरान से निकालने का भी बीड़ा उठाया। सियासत की परवाह किए बगैर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी मुफाद को हमेशा जाती मुफाद पर मुकद्दम रखा और ये वाज़े पैगाम दिया कि अवाम की फलाह बहबूद और मुल्क की इस्तेहकाम के लिए तमाम रंजिशें और तजादात को पसे पुश्त रख कर अजीम मकसद हासिल किया जा सकता है। 16 माह के कलील दौरानिये में बतौर वजीर आजम उन्होंने कई दलेराना फैसले किए, जिसके बाइस जहां मईशत के डिफॉल्ट होने का खतरा टला, वहीं तवानाई और ज़राअत समेत
इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में मुख्तलिफ मंसूबों पर तेज रफ्तार पेशरफ्त सामने आई और यही नहीं आलमी सतह पर दोस्त मुल्कों और दीगर अक़वाम के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को फरोग देने में दानिशमंदाना किरदार अदा किया। एक जानिब मुल्क की तारीख के बदतरीन सैलाब से नबरदाज़मा होते हुए हर मुतासरा शख्स तक पहुंचे उनकी दादरसी की, तो दूसरी जानिब दुनिया को बावर कराया कि जिस कुदरती आफत का सामना है उसका पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं। मोहम्मद शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा के दौरान खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का क़याम भी अमल में आया, जो मुल्क में सरमायाकारी के फरोग में एक संगे मील की हैसियत रखता है। मोहम्मद शहबाज शरीफ 3 मरतबा पंजाब के वजीर आला रहे। इस दौरान उन्होंने खुद को एक बेहतरीन मुंतजिम साबित किया और अपने लिए खादिम आला कहलवाना ज्यादा मौजू समझा। उनके इस अनथक जज्बे को न सिर्फ कौमी सतह पर पजीराई मिली बल्कि आलमी सतह पर भी सराहा गया। मोहम्मद शहबाज शरीफ के इन गरा कदर इकदामात को देखते हुए अवाम ने भरपूर ताईद के साथ ये मौका फराहम किया है कि वो दूसरी मरतबा वजारत उज़्मा का ओहदा संभाल कर कौम को मुआशी दलदल से निकालने में अपनी सलाहियतें बरूए कार ला सकें। तवक्को है कि मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत अवामी फलाह बहबूद, हुकूमत की तवज्जो का महवर और मुल्क की तरक्की और खुशहाली तरजीही इक़दामात होंगे। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सुबकदोश होने वाले निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने सुबकदोश होने वाले निगरान वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सुबकदोश होने वाले निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर आज़म हाउस के अफसरान और अमले से अलविदाई मुसाफा किया। अनवारुल हक काकड़ ने गुज़श्ता साल 14 अगस्त को निगरान वज़ीर आज़म का मनसब संभाला था। इससे कबल वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सुबकदोश होने वाले निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के दरमियान मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सुबकदोश होने वाले निगरान वज़ीर आज़म की क़यादत में निगरान हुकूमत के मुल्क की तरक्की के तसलसल के लिए किए गए इक़दामात की तारीफ की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सुबकदोश होने वाले निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को रुखसत किया और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मिसाक मुफाहमत और मिसाक मईशत की तजवीज़ का खैर मकदम करते हुए कहा कि कौम को दरपेश चैलेंजेस और माशी मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को मिलकर किरदार अदा करना होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक उमर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान के अवाम ने सियासतदानों को अपने मसाइल हल करने के लिए मुंतखब करके पार्लियामेंट भिजवाया है, हमें उन्हें मायूस नहीं करना चाहिए। इस इलेक्शन में अगर पाकिस्तान के अवाम ने वोट दिए तो इसलिए कि वो चाहते हैं कि इस मुल्क को और उनको उस मुआशी बहरान से निकाला जाए। ये महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का जो सुनामी पाकिस्तान के अवाम उसकी तकलीफ में है, वो हम सब की तरफ देख रहे हैं कि हम उनको इन मुश्किलात से निकाले। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 18वीं तरमीम के तहत विफाक में कायम 18 वजारतों के खात्मे का मुतालबा करते हुए ऐवान में मौजूद तमाम सियासी जमातों को मुल्क में जुडिशल और माशी इस्लाहात के लिए मिल बैठने की दावत दी। चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो, हमें आपस में बात करना चाहिए। अगर आप वाकई इलेक्शन जीत चुके हो तो आप जानते हो कि पाकिस्तान के अवाम महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, गुर्बत की वजह से तंग आ चुके हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि एहतजाज का हक हर एक को हासिल है, ताहम जमहूरी इक़्तिदार का ख्याल रखना जरूरी है। रुकन कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि वो मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने वजीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मुंतखब होने वाले अरकान असम्बली को मुबारकबाद देते हुए शोर शराबे की बजाय आइन और कानून का रास्ता इख्तियार करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने मुल्क की मईशत की बहाली और सियासी बर्दाश्त के लिए सब सियासी जमातों को मिल बैठने के लिए कहा।
बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि मुल्क में कानून और इंसाफ की हुक्मरानी की जरूरत है। राजा परवेज अशरफ ने ऐवान में तमाम अरकान की जानिब से मुहज्जब और संजीदा रवैया इख्तियार करने की जरूरत पर जोर दिया ताकि जमहूरी अमल आगे बढ़ता रहे। महमूद खान अचकजई ने कहा कि उनकी पूरी जिंदगी आइन और कानून की बालादस्ती की जिद्दोजहद में गुजरी है। अख्तर मेंगल ने कहा कि जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए आइन पर मुकम्मल अमल दरामद होना चाहिए। कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई जुमे की शाम 5 बजे तक मुलतवी हो गई। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने 4-1 के तनासुब से महफूज फैसला सुनाते हुए करार दिया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से बरवक्त तरजीही फहरिस्तें जमा नहीं कराई गई, इसलिए इसे खवातीन और गैर मुस्लिमों के लिए मुख्तस नशिस्तें नहीं मिल सकती। इलेक्शन कमीशन ने दीगर जमातों की दरखास्तें मंजूर करते हुए फैसले में कहा कि असेंबलियों की मखसूस नशिस्तें खाली नहीं रखी जा सकती। मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में उनकी सीटों के तनासुब से तकसीम की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 53 की सेक्शन 6 और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 के तहत फैसला सुनाया है। मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना ने इख्तिलाफी नोट तहरीर किया है। सदारती इंतखाबात के सिलसिले में आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। उधर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान किया है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने अलीम खान से इस्लामाबाद में मुलाकात की और सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी की हिमायत की दरख्वास्त की। वफ्द में सैयद यूसुफ रजा गिलानी, इसहाक डार, परवेज अशरफ, सैयद नवीद कमर और दूसरे रहनुमा शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत मुकम्मल करते हुए राय महफूज कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालती मुआविन मियां रज़ा रब्बानी ने दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नए इंतखाबात के लिए हुकूमत और अपोजिशन के माबैन मामला तय हो चुके थे, मुआहदे पर दस्तखत होना बाकी थे, लेकिन मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। मुकम्मल इंसाफ की फराहमी के लिए भुट्टो रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 187 का इस्तेमाल कर सकती है। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर में सूबे के पहले कैंसर अस्पताल की तामीर का ऐलान किया है। तफसील बताएंगी फरहाना खान। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर में वेलेंशिया टाउन के करीब कैंसर अस्पताल की साइट का दौरा किया और सूबे के पहले कैंसर अस्पताल की तामीर के बारे में ब्रीफिंग ली। इस मौके पर मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के पहले सरकारी अस्पताल में बेहतरीन डॉक्टर्स और जदीद तरीन मशीनरी लाएंगे और कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। वज़ीर आला ने मरीजों के तीमारदारों के लिए होटल बनाने की हिदायत भी की। साबिक सेनेटर परवेज रशीद, अरकान असम्बली ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नजीर, सानिया आशिक और दीगर मुतल्लिका हुक्काम भी मौजूद थे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल वहदत कॉलोनी का अचानक दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने बच्चियों से स्कूल में दरपेश मसाइल और जरूरियात के बारे में दरियाफ्त किया। मरियम नवाज ने तालिबात को स्कूल और क्लास रूम्स को साफ सुथरा रखने और असातिज़ा को पढ़ाई के साथ क्लास टेस्ट जारी रखने की भी हिदायत की। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने क्लास दहम के बोर्ड इम्तहानी मराकज का भी दौरा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने लाइब्रेरी, बायोलॉजी लैब और स्पोर्ट्स रूम का मुआयना किया। उन्होंने बोर्ड में पोजीशन लेने वाली खिलाड़ी तालिबात के साथ फोटो बनवाई और उन्हें ऑटोग्राफ दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एक आला सतह के इजलास में सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल मंसूबे के आगाज का ऐलान किया। इस मौके पर मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब भर में कोई भी सड़क टूटी फूटी न रहे। सड़कों की तामीर और बहाली जल्द मुकम्मल कराएंगे और मयार पर कतन समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने नई और पुरानी सड़कों पर एक्सेल लोड मैनेजमेंट सिस्टम पर अमल दरामद की हिदायत की और सड़कों के जेर तकमील मंसूबे मुकम्मल करने का हुक्म दिया। उन्होंने 6 माह में पंजाब की 153 से ज्यादा सड़कों की तामीर और मरम्मत मुकम्मल करने का हदफ दिया, जबकि 5 अहम राब्ता सड़कों पर एक्सप्रेस वे बनाने का हुक्म दिया। इजलास में मुल्तान विहाड़ी रोड समेत दीगर सड़कें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाने का फैसला किया गया। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। सैयद मुराद अली शाह ने सरदार अयाज सादिक को स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि तीसरी बार भारी अक्सरियत से मुंतखब होना इत्तेहादी जमातों के कायदीन और अरकान असम्बली का उनकी कायदाना सलाहियतों पर भरपूर एतमाद का इजहार है। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि सरदार अयाज सादिक पहले की तरह ऐवान की कार्रवाई को खुश उसलूबी से चलाएंगे और जमहूरी और पार्लिमानी रिवायात को फरोग देकर नई पार्लिमानी तारीख रकम करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने डिप्टी स्पीकर सैयद मुस्तफ़ा शाह को भी मुबारकबाद देते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने सैयद मुराद अली शाह को तीसरी बार वज़ीर आला सिंध मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और इस एतमाद का इजहार किया कि उनकी क़यादत में सूबा तरक्की की मनाजिल तय करेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कायदे-ए-वान मुंतखब होने के बाद अपने खिताब में मुल्क को मुआशी गर्दाब से निकालने के लिए मुकम्मल लाहे अमल दिया है। मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने वज़ीर आज़म की तरफ से इक़दामात को सराहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा कि पाकिस्तान को माशी चैलेंजेस दरपेश हैं। हमें निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियाँ और बुनियादी इस्लाहात लाना होंगी। सरकारी इदारों का खसारा कम करना होगा। वज़ीर आज़म ने ज़रई शोबे की तरक्की को अपनी अव्वलीन तरजीह करार दिया। उन्होंने कहा कि सीपैक के तहत मनसूबों को मजीद फ़रोग़ दिया जाएगा और खलीजी ममालिक और यूरोपीय यूनियन के साथ ताउन को मजीद वुसअत देंगे। नौजवानों को IT बिलखुसूस मसनूई ज़हानत के शोबे में तरबियत दी जाएगी। सेहत के शोबे में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाई जाएंगी। बैंकों से कर्जे दिए जाएंगे। मुझे तवक्को है कि शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मसाइल के गर्दाब से निकलकर खुशहाली की जानिब गामज़न होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में सेहत, तवानाई, निज़ाम अदल और ख़ारजा पॉलिसी के साथ साथ उन तबक़ात के बारे में भी बात की जिन्हें इससे पहले कम याद रखा गया। हम शुक्रगुज़ार हैं कि वज़ीर आज़म मुल्क के मसाइल का पता होने के साथ उनके जो है वो हल का मंसूबा भी रखते हैं। मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छा ये फैसला किया है कि जो अमीर है, जो बेतहाशा पैसे कमा रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि गरीबों पे उसका बोझ ना आए। बहुत खुशी हुई है कि किसी भी वज़ीर आज़म ने मुंतखब होकर मुल्की मसाइल के साथ साथ इनके हल होने की भी बात की है। अक़लियतों के हुकूक के साथ साथ ख़वातीन के मेयार ज़िंदगी और मुल्की मईशत से ज़राअत को जोड़ा है। जो रोड मैप प्रेजेंट किया है वो मुल्क के लिए काफ़ी मुफीद साबित हो सकेगा। ये मुल्क हम सबका है और हम सबका ये जिम्मेदारी है कि हम वज़ीर आज़म के इन अच्छे कामों के साथ खड़े रहें। जो रोड मैप मिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने पेश किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, हमें चाहिए कि हम उनका साथ दें, पाकिस्तान का साथ दें, पाकिस्तान को मजबूत करें। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में जल्द अज जल्द मुल्की मसाइल पर काबू पा लिया जाएगा। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया और 100 इंडेक्स 626 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 65,951 पर बंद हुआ। तफसील मोहम्मद जुबैरुद्दीन की इस रिपोर्ट में। कारोबारी हफ्ते के आगाज में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी रही और 100 इंडेक्स में 626 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। तज्जियाकारों के मुताबिक सियासी इस्तेहकाम और वज़ीर आज़म का हल्फ उठाने के बाद बेयकीनी की कैफियत मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है और जमहूरियत का तसलसल और तमाम मामलात का एहसन अंदाज में मुकम्मल होना मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे और मईशत के इस्तेहकाम का जरिया बन रही है। मुल्क में जब कोई पॉजिटिव इवेंट होता है तो उससे जो है ना इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और मज़ीद अच्छा होता है। और वैसे भी जो है ना एक जो स्टॉक मार्केट के जो इंडेक्स था वो पहले ही उस पे था, एक सर्टेन लेवल पे जा चुका था और फिर थोड़ा सा नीचे एडजस्टमेंट हुई थी तो उसको वैसे ही ऊपर जाना था। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है ना तो फिर वो लोग जो वेट एंड सी में लगे होते हैं, लाइन में लगे होते हैं ना, वो फिर अंदर आते हैं मार्केट में और अपना काम शुरू कर देते हैं। तो जाहिर बात है कि लोग इन्वेस्टर हैं जो इसी काम में इन्वॉल्व हैं, वो अपना इंतजार करते हैं या मौका देखते हैं और फिर उसको मार्केट में एंटर करते हैं। स्टॉक मार्केट में 47 करोड़ 28 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ जिसकी मालियत 16 अरब 28 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। मार्केट में 180 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 150 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 21 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। ऑटोमोबाइल सेक्टर, सीमेंट, केमिकल्स, बैंकिंग के शोबे से ताल्लुक रखने वाली कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बरामद कुनंदगान के 3 मार्च 2024 के 65 अरब रुपए के तमाम वाजिबुल अदा रिफंड्स जारी कर दिए हैं। FBR के मुताबिक बरामद कुनंदगान को जारी करदा रिफंड से बरामदात में मजीद बेहतरी और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। तिजारती तंजीमों और बरामदी शोबों ने वज़ीर आज़म के इस इक़दाम का खैर मकदूम करते हुए कहा कि इससे मुआशी खुशहाली और टेक्सटाइल की सनत में रोजगार के मजीद मौके पैदा होंगे। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इस्राएली मज़ालिम का न रुकने वाला सिलसिला जारी है। सिहोनी फ़ौज ने गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों पर गोलाबारी की। 24 घंटे के दौरान मजीद 124 अफराद शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से जारी इस्राएली हमलों में 30,534 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 71,920 ज़ख्मी हो चुके हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है
کہ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر میں امداد کے متلاشی شہریوں پر ایک بار پھر فائرنگ کی۔ اس قتل عام میں درجنوں افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ فلسطینی علاقوں میں غذائی قلت اور ناکافی طبی امداد کی وجہ سے جاں بحق ہونے والے بچوں کی تعداد 16 ہو گئی ہے۔ امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس نے غزہ میں فوری جنگ بندی کی اپیل کی ہے۔ ریاست الاباما میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غزہ میں بے گناہ لوگ انسانی تباہی کا شکار ہیں، انہیں قحط کا سامنا ہے۔ بے پناہ مصائب کے پیش نظر فوری جنگ بندی ہونی چاہیے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے بھی غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ متاثرین کو امداد کی فراہمی کے لیے کوششیں تیز کرنا ہوں گی۔ سینٹ نے غزہ کا محاصرہ فوری ختم کرنے اور مسلمان ممالک کو امداد فراہم کرنے کے لیے مکمل رسائی دینے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ قرارداد سینیٹر افنان اللہ نے پیش کی۔ سینٹ کا اجلاس ڈپٹی چیئرمین مرزا محمد آفریدی کی صدارت میں ہوا۔ قرارداد میں اسرائیلی فوج کی جانب سے امداد کے حصول کے لیے اکٹھے ہونے والے نہتے فلسطینیوں کو بے دردی سے قتل کرنے کی مذمت کی گئی۔ اراکین سینٹ نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطین جانے والی بین الاقوامی امداد کی بندش کی وجہ سے فلسطین کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ سینٹ اجلاس میں 7 بلز کی بھی منظوری دی گئی، جن میں اینٹی ریپ ترمیمی بل، پاکستان ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کوریج پروگرام بل، پاکستان علاج و معائنہ بلند فشار خون بل، بچوں کو بریسٹ فیڈنگ اور غذائیت کے تحفظ کا بل، انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، کلچر اور ہیلتھ سائنسز بل، نیشنل ڈیٹا بیس اور رجسٹریشن اتھارٹی ترمیمی بل اور نیشنل ایکسیلنس انسٹیٹیوٹ بل شامل ہیں۔ ایوان میں 4 بل بھی پیش کیے گئے جنہیں متعلقہ قائمہ کمیٹیوں کو بھجوا دیا گیا۔ سینٹ کا اجلاس بدھ کے صبح 10:30 بجے تک ملتوی ہو گیا۔ اسلام آباد میں سینٹ کی خالی نشست پر یوسف رضا گیلانی اور الیاس مہربان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں۔ ریٹرننگ آفیسر ظفر اقبال حسین نے دونوں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کیے۔ ادھر سندھ میں سینٹ کی 2 خالی نشستوں کے لیے پیپلز پارٹی کے 4 اور سنی اتحاد کونسل کے 3 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی درست قرار پائے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے جام سیف اللہ، اسلم ابڑو، وقار مہدی اور عاجز دھامرا۔ سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے ایڈوکیٹ نذیر اللہ، شازیہ جعفرانی اور علامہ جمیل اظہر کے کاغذات نامزدگی درست قرار دیے گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شہری رحمان نے کہا ہے کہ جمہوری قوتوں کا مل بیٹھنا وقت کی ضرورت ہے، سب نے مل کر پاکستان کو مسائل سے نکالنا ہے۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھٹو ریفرنس کو پورا بینچ سن رہا ہے کہ اس کی سماعت پر چیف جسٹس کے شکر گزار ہیں۔ اس موقع پر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ آصف علی زرداری ایک بار پھر صدر ہوں گے، اپوزیشن پارلیمنٹ میں ذمہ دارانہ کردار ادا کرے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے سپنوام میں گزشتہ ہفتے پاک فوج کے ہاتھوں جہنم واصل ہونے والے 6 دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے نکلا۔ ہلاک دہشت گردوں میں محمد انور ولد انگور خان سکنہ خوست، حمزہ سکنہ لوگر، فرحان سکنہ لوگر، شبیر جان عرف عابد سکنہ خوست، گل جان سکنہ پکتیکا اور طلحہ عرف زرار شامل ہیں۔ کارروائی میں شمالی وزیرستان کا رہائشی 16 سالہ مبینہ خودکش بمبار عابد اللہ ول جمال بھی ہلاک ہوا تھا۔ افغان شہریوں کا پاکستان کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں میں استعمال افغان عبوری حکومت کے دعووں کی نفی کرتا ہے۔ افغان حکومت کو اپنے شہریوں کو پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں سے روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے مقبوضہ کشمیر کے دورے کے خلاف 7 مارچ کو مکمل ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ KMS کے مطابق ہڑتال کا مقصد تنازع کشمیر کے حل پر زور دینا اور بھارتی ہندوتوا حکومت کی طرف سے کشمیریوں پر جاری مظالم اور ان کے سیاسی حقوق سے محرومی کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانا ہے۔ سری نگر میں پوسٹرز بھی چسپاں کیا گئے ہیں جن میں نریندر مودی کو مسلمانوں پر ظلم و تشدد کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ پوسٹرز میں کہا گیا ہے کہ مودی حکومت جموں و کشمیر کی مسلم اکثریتی شناخت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے کشمیریوں کی نسل کشی کی مہم جاری رکھے ہوئے ہے۔ نریندر مودی کے دورے سے قبل پورے مقبوضہ علاقے میں سیکیورٹی کے نام پر سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ مقبوضہ علاقے میں سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں اور نگرانی کے لیے CCTV کیمرے نصب کیے گئے ہیں، جبکہ لوگوں کی نقل و حرکت محدود کر دی گئی ہے، جس سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کانگریس پارٹی کی کشمیر شاخ کے رہنما منوہلا نے جموں میں ایک بیان میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے دور حکومت میں مقبوضہ جموں کشمیر میں امن و امان، معیشت کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور بدترین طرز حکومت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، بھارت غیر ملکی سیاح خواتین کے لیے انتہائی غیر محفوظ ملک بن چکا ہے۔ ہسپانوی بلاگر خاتون کے گینگ ریپ سے بھارت کا پول کھل گیا ہے۔ 1 مارچ کو بھارت کے شہر جھارکھنڈ میں ہسپانوی لڑکی اپنے ساتھی کے ہمراہ موٹر سائیکل پر سفر کر رہی تھی جب اسے گینگ ریپ کا نشانہ بنایا گیا۔ الجزیرہ کے مطابق ہسپانوی جوڑے نے بھارتی ریاست ڈمکا میں رات گزارنے کے لیے خیمہ لگایا تھا۔ 7 افراد کے ایک گروپ نے ان پر حملہ کیا۔ حملے کے بعد ایک پیٹرولنگ کار نے دونوں کو بچایا اور انہیں مقامی اسپتال لے جایا گیا۔
हिंदुस्तान टाइम्स का कहना है कि 28 साल हिस्पानवी ट्रैवल ब्लॉगर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा कि ग्रुप ने हमें तशद्दुद का निशाना बनाया, हमारा सारा साजो सामान लूटा और मेरा रेप किया। आलमी मीडिया की जानिब से हिस्पानवी ब्लॉगर खातून के रेप पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक भारत में हर रोज औसतन तकरीबन 90 अस्मत दरी के वाकयात रिपोर्ट होते हैं। रवा साल अस्मत दरी के 31,516 वाकयात दर्ज किए गए। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च 20वें रोज भी जारी है। हरियाणा पुलिस ने दिल्ली चलो मार्च में शामिल मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी है। दीवायर के मुताबिक किसानों के साथ जुल्म को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को पैलेट गन के इस्तेमाल को खत्म करना चाहिए। बैनुल-अक़वामी क़वानीन में पैलेट गन का इस्तेमाल ममनू है। इंसानी हकूक की तंजीमों और मुतासरा अफराद ने ट्विटर अकाउंट्स की मुअत्तली को इजहार राय के खिलाफ क्रैकडाउन करार दिया है। उधर सिखों की बड़ी तादाद ने वाशिंगटन में भारतीय सिफारतखाने के सामने मुजाहरा किया। सिख मुजाहिरीन ने इस मौके पर मोदी कातिल के नारे लगाते हुए भारतीय सिफारतखाने की तरफ मार्च किया। किसानों पर मजालिम के खिलाफ नारे लगाते हुए मुजाहिरीन का कहना था कि खालिस्तान के क़याम का मकसद पंजाब को हिंदुस्तान से आज़ाद कराना है। खालिस्तान के परचम उठाए सिख मुजाहिरीन ने भारतीय सिफारतखाने में नस्ब गांधी के मुजस्समे पर भी खालिस्तान का परचम लहरा दिया। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ को आज़ाद कराउणगे। ਸ਼ੈਮ 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 ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਤੋੜਾ ਦੇਵੇ ਠੋਕ ਕੇ किसान हल। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानिश्वर और मारूफ कॉलम निगार सेनेटर इरफान सिद्दीकी को सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ से शोबा बलागियात और तालीम में उनकी गिराकतर खिदमात पर PhD की डिग्री दी है। यूनिवर्सिटी के सालाना कॉन्वोकेशन में डिग्री का ऐलान करते हुए बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और रेक्टर सुमेरा रहमान ने सेनेटर इरफान सिद्दीकी की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए उन्हें कौम का कीमती सरमाया करार दिया। यूनिवर्सिटी के चांसलर और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने सेनेटर इरफान सिद्दीकी को डॉक्टरेट की डिग्री दे जाने को खुद यूनिवर्सिटी के लिए एक एजाज करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने रवा माह के लिए सूबाई महकमों के अमूर चलाने के लिए 159 अरब रुपए से जायद के बजट की मंजूरी दे दी है। इजलास की सदारत स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने की। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने तहरीक के ऐवान में पेश की। ऐवान ने इस माह की 9 तारीख को होने वाले सदारती इंतखाब के लिए असेंबली चैम्बर को पोलिंग स्टेशन करार देने की करारदाद भी मुतफ़क्का तौर पर मंजूर की। स्पीकर ने इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीडीओ को इस्लामाबाद के F9 पार्क से जंगली शहतूत काटने की इजाजत दे दी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फरीकों से तजावीज़ और माहिरीन की बतौर मुबस्सरीन तैनाती के लिए नाम तलब कर लिए। आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान अदालत ने हुक्म दिया कि जंगली शहतूत की कटाई के वक्त CDA का अमला मौजूद हो और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जंगली शहतूत के सिवा कोई और दरख्त ना काटा जाए। सेनेट की कवायदो ज़वाबित और इस्तेहकाक की मजलिस कायमा का इजलास चेयरमैन सेनेटर मोहम्मद ताहिर बिजिंजो की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसमें सेनेटर वकार मेहदी की सीनियर मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध के खिलाफ इस्तेहकाक की तहरीक पर गौर किया गया। कमेटी ने मेंबर के इजलास में न आने पर चीफ सेक्रेटरी को इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए खत लिखने का फैसला किया। ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से इस्लामाबाद में कौमी ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मरियम मलिक की रिपोर्ट देखिए।
خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے خواتین کی ہمت بندھانے کا مشن قومی ادارہ برائے وقار نسواں اور انسداد غربت کے لیے کام کرنے والے PPAF کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرپرسن NCSW نیلوفر بختیار نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ خوشحال اور روشن پاکستان کی جانب بڑھنے کے لیے خواتین کے نمایاں کردار کی اہمیت کو اجاگر کرنا ضروری ہے۔ وہ تمام خواتین جو آج اپنی کسی نہ کسی خصوصیت کو سیلیبریٹ کر رہی ہیں، ان کو ہم نے یہاں دعوت دی ہے کہ وہ آئیں، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں، اپنی پرفارمنس کے بارے میں ہمیں بتائیں، اور وہ بچیاں جو ابھی چل رہی ہے زندگی کے سفر میں، ابھی روانہ ہوئی ہیں، وہ ان کی زندگی سے سبق حاصل کر سکیں۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں مقام حاصل کرنے والی خواتین نے تقریب کے دوران اپنی کامیابی کی کہانی سنائی اور بتایا کہ مشکلات کے باوجود کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ ویمن امپاورمنٹ کے بغیر پروگریس پاسبل نہیں ہے، تو ہمیں خواتین کو امپاور کرنا چاہیے، اکنامکلی بھی، ویسے بھی شعور دینا چاہیے، اور مرد اور عورتوں دونوں کو ریسورسز کو ایکسیس دینا چاہیے۔ نصف آبادی جو ہے خواتین پہ مشتمل ہے، اور اگر ہمیں پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے تو ہمیں خواتین کو ایکول اپارچونیٹی دینی ہوں گی، اس کے ساتھ ساتھ ان کو تعلیم کے مواقع۔ ہمارا کیا مقصد ہے، ہماری انڈیویجوالٹی کیا ہے، ہمارا کیا پرپز ہے؟ ہم کراؤڈ میں بننے نہیں آئے، مگر ہمارا اپنا ایک پرپز ہے لائف میں، اور اس کو اچیو کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں۔ مختلف طالبات کی جانب سے ملک کی ترقی میں خواتین کے کردار اور چیلنجز پر مبنی خاکے بھی پیش کیے گئے، جنہیں حاضرین کی جانب سے خوب سراہا گیا۔ مریم ملک، PTV نیوز، اسلام آباد۔ یوگینڈا کی وزارت سماجی ترقی کے سیکرٹری ایگری ڈیوڈ کی قیادت میں 17 رکنی وفد نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اسلام آباد کا دورہ کیا۔ سیکرٹری BISP عامر علی احمد نے وفد کو بتایا کہ BISP کفالت پروگرام کے تحت 93 لاکھ مستحق خاندانوں کو مالی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ نشو و نما پروگرام کے ذریعے 17 لاکھ حاملہ، دودھ پلانے والی مائیں اور ان کے بچوں کی غذائی ضروریات کو پورا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ BISP تعلیمی وظائف پروگرام کے ذریعے 92 لاکھ بچوں کا سکولز میں اندراج بھی کیا جا چکا ہے۔ وفد کے سربراہ نے دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعاون کو بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ سفارتکار اور معروف صحافی ڈاکٹر ملیحہ لودھی کی نئی کتاب پاکستان سرچ فار اسٹیبلٹی کی تقریب رونمائی اسلام آباد میں ہوئی۔ تقریب میں مصنفہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے ان شعبوں پر بات کی جن کا احاطہ اس کتاب میں کیا گیا ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر دشکا سید اور صحافی زاہد حسین نے تاریخ اور جغرافیہ کی مناسبت سے باندھے گئے ابواب کا جائزہ لیا۔ مقررین نے کہا کہ تاریخ، سیاست، معیشت اور ثقافت کو جاننے کے لیے یہ کتاب ایک بہترین کاوش ہے۔ معروف گلوکار ڈاکٹر امجد پرویز کو لاہور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ وہ گزشتہ رات مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے تھے۔ ان کی عمر 78 برس تھی۔ امجد پرویز کی خدمات کا احوال بتا رہی ہیں لاہور سے وردہ سلیم۔ ڈاکٹر امجد پرویز ایک ہمہ گیر شخصیت کے مالک انسان تھے۔ پیشے کے اعتبار سے انجینئر، انگریزی اور اردو کتابوں کے مصنف اور باکمال گلوکار۔ ان کی شخصیت کا ہر رنگ دلکش اور نرالا تھا۔ امجد پرویز مارچ 1948 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے انٹرمیڈیٹ اور یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے میکینیکل انجینئرنگ میں گریجویشن کرنے کے بعد انگلینڈ سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ 1954 میں ریڈیو پاکستان لاہور کے پروگرام ہونہار میں پہلی مرتبہ چائلڈ آرٹسٹ کے طور پر شرکت کی اور زندگی بھر ریڈیو کے ساتھ منسلک رہے۔ موسیقی سے تو امجد پرویز کو انتہا کا لگاؤ تھا۔ انہوں نے شام 84 گھرانے کے استاد نزاکت علی خان اور دیگر گلوکاروں سے باقاعدہ میوزک کی تربیت حاصل کی اور کلاسیکی موسیقی کے اسرار و رموز اور باریکیوں کو سمجھا۔ 70 کی دہائی میں ریڈیو پاکستان لاہور سے ڈاکٹر امجد پرویز کی گائی ہوئی 100 سے زائد غزلیں اور گیت نشر ہوئے۔ بہت شفیق اور بہت خوش مزاج اور بہت پیارے شخص تھے۔ نالج ان کا بہت زیادہ تھا، کلاسیکل میوزک کے حوالے سے، غزل گیت کے حوالے سے، پاپ میوزک کے حوالے سے، فوک میوزک کے حوالے سے۔ ڈاکٹر امجد پرویز متعدد کتابوں کے مصنف بھی تھے اور طویل عرصہ ایک قومی اخبار میں کالم بھی لکھتے رہے۔ ڈاکٹر امجد پرویز کو 2000 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ وہ گردوں کے امراض میں بھی مبتلا تھے، جس کے باعث گزشتہ روز اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کے نماز جنازہ میں شوبیز اور موسیقی کے شعبے سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ ڈاکٹر امجد پرویز کی گلوکاری کے لیے کی گئی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, पाक फौज की जानिब से स्वात और मालाकंड में शदीद बर्फबारी के बाद मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मालम जब्बा में लैंडस्लाइडिंग के बाद पाक फौज की टीमों ने फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और सड़क से भारी पत्थर और मिट्टी हटाकर ट्रैफिक को बहाल किया। स्वात के इलाके मट्टा में पाक फौज की रेस्क्यू टीम ने लैंडस्लाइडिंग के बाइस मकान के मलबे से 7 अफराद की लाशें और 2 जख्मियों को भी निकाला। पाक फौज की जानिब से मुतासरा इलाकों में राशन तकसीम किया जा रहा है। मौसम की खराबी और लैंडस्लाइडिंग के खतरे के बावजूद रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। नाज़रीन, गुज़श्ता 5 रोज़ के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में रोनुमा होने वाले हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 35 हो गई है, जबकि 43 अफराद जख्मी हुए हैं। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक 46 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, जबकि 346 घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा अफराद में खुराक और इमदादी सामान तकसीम किया गया। वज़ीर आला ने PDMA, ज़िले इंतज़ामिया, रेस्क्यू 1122 समेत मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की है। आज़ाद कश्मीर के ज़िला फॉरवर्ड कोहटा में शदीद बारिशों और दुगयानी की वजह से बेतार नाले में फंसे हुए 8 बच्चों और 7 खवातीन समेत 25 अफराद को निकालने के लिए पाक फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। तमाम मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरीन में राशन और खाना तकसीम करने के साथ साथ उनकी माली मुआवनत भी की गई। मकामी अफराद और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से पाक फौज के कामयाब ऑपरेशन को भरपूर सराहा गया। नाज़रीन, FWO का गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बर्फबारी और बारिशों के बाइस इलाके को लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तौदों का सामना करना पड़ा। FWO के जवानों ने खंजराब में चीन से सोस्ट एयरपोर्ट जाने वाले तिजारती काफिले को रेस्क्यू किया। ये तिजारती काफिला भारी बर्फानी तौदे और लैंडस्लाइडिंग में फंस गया था। बर्फ हटाने के साथ साथ गैर मुल्कियों समेत सियाहों को तिब्बी इमदाद और खाना भी फराहम किया गया। FWO के जवानों ने कराकोरम हाईवे और जगलोड स्कर्दू रोड पर 48 से ज्यादा मकामात पर सड़क को क्लियर कर दिया है। कराकोरम हाईवे और जगलोड स्कर्दू रोड से मलबा हटाने तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। मुल्क के शिमाली हिस्सों की तरह बलूचिस्तान में भी सर्द मौसम और यकबस्ता हवाओं का राज है। बारिश और बर्फबारी के हालिया सिलसिले से सर्दी एक बार फिर बढ़ गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से अजीज मरी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में एक हफ्ते से जारी तूफानी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला तो रुक गया है, लेकिन सर्दी की शिदत में मजीद बढ़ती हुई महसूस होती है। शुमाली बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में टेम्परेचर बदस्तूर नुक्ताए अंजमात से कम है। कल रात में सुबह होने से पहले टेम्परेचर -8 और सूरज निकलने के बाद -5 डिग्री से कम नहीं। कोयटा में भी सुबह और रात के औकात में पारा सिफर से -5 से किसी तरह नीचे ही नहीं जाता। कोयटा में 5 और 6 मार्च की दरमियानी शब से दोबारा बारिशों का भी इम्कान है। कोयटा, लखपास, खालूजई, कान बेहतरजई, किला सैफुल्ला, चमन और किला अब्दुल्ला में भी टेम्परेचर मुसलसल नुक्ता अंजमात से कम ही है। रक्षान डिवीजन के रेगिस्तानी इलाकों चागी, खारान, वाशिक, तालबंदी, नौकुंडी और नौशकी में भी दर्जा हरारत सिफर, जबकि मकरान डिवीजन और साहिली पट्टी पर भी टेम्परेचर डबल फिगर्स में नहीं। झालावान रीजन में गर्मी में 50 डिग्री क्रॉस कर जाने वाले खुजदार में सिफर, लसबेला में भी दर्जा हरारत इन दोनों 3 से 4 डिग्री के दरमियान है। मौसमियाती तगरियात की वजह से बलूचिस्तान में रवां सीजन में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला निस्बतन ताखीर से तो शुरू हुआ, लेकिन इन बारिशों से सितंबर से जारी खुश्क सर्दी का भी खात्मा हुआ। मौसमी सरमा की इन बारिशों से बागात और जेर जमीन पानी की सतह भी बेहतर होगी। हालिया बारिश के दौरान PDMA के मुताबिक कच्चे मकानात की छतें गिरने से खारान में 3 और 2 अफराद बारखान में जाँ बाक हुए। 82 मकानात मुकम्मल तबाह हुए, जिनमें 70 सिर्फ गवादर के थे। सूबे भर में 130 मकानों को जुज़वी नुकसान हुआ। केच में 4 सड़कें और एक पुल को भी नुकसान हुआ। अजीज मरी, PTV न्यूज़, कोयटा। और महकमे मौसमियात का कहना है कि मुल्क भर में आइंदा 48 घंटे में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। वकार हैदर की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए।
बारिशों का एक सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। इस्लामाबाद में मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद होगा, लेकिन सर्दी बरकरार रहेगी। पंजाब के भी बेशतर अजला में मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, लेकिन मरी, गलियात और मुहल्लिका इलाकों में मौसम शदीद सर्द होगा। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चित्राल और दीर में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। दीगर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में शदीद सर्दी रहेगी, जबकि कोयटा, कल्लात, खुजदार, पंजगूर, वाशक, तुरबत समेत दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। सूबा सिंध में आइंदा 48 घंटों के लिए मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है, जबकि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का भी इम्कान है। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लाम। गिलानी साहब, पहले आप जो कुछ कहना चाहते हैं वो कह दें, फिर आपने जो जवाब दिया। आप सबके इल्म में है कि इंतखाबात के बाद अब ऐवान में मुख्तलिफ नुमाइंदगियाँ और ज़िम्मेदारियाँ, उसके इलेक्शंस हो रहे हैं और 9 तारीख़ को सदर मुमलिकत का इलेक्शन भी होगा, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी उम्मीदवार हैं। इसी हवाले से ये वफ़द आया था और आप सबके इल्म में है कि हम पहले भी हमारी और पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों के साथ मफाहमत की एक तारीख़ है और इस सिलसिले में हम मिल के चलते भी रहे हैं। इन्होंने जो दरख्वास्त की है, कल 5 बजे कराची में राब्ता कमेटी का इजलास है और फॉर्मली उनके सामने रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम जमहूरियत के हक़ में और पाकिस्तान की बेहतरी के हक़ में फैसला करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मुश्तरका वफ़द जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, हम MQM की क़यादत के पास हाज़िर हुए हैं और दरख्वास्त की है कि सदर पाकिस्तान सदर आसिफ अली जरदारी साहब के लिए वोट का हमने मुतालबा किया है। और इनका पास्ट में भी इन्होंने जो गुफ्तगू में बात हुई तो पहली दफ़ा मुझे पता चला कि इन्होंने पहले भी प्रपोज़ल और सेकेंडर भी जरदारी साहब के जब सदर बने थे लास्ट टाइम, तो वो MQM थी। तो इसलिए खुशी की बात है कि इन्होंने अब जो अभी हुकूमत साजी तो भी जो हुई है और जो इलेक्शंस हुए हैं, हाँ वो स्पीकर का है, डिप्टी स्पीकर का है, प्राइम मिनिस्टर का है, तो हमने मिल के वोटिंग हमने की है। तो इंशाल्लाह हम तवक्को करते हैं कि आइंदा भी आगे हम मिलकर चलें और इस मुल्क को मजबूत बनाएं, इस मुल्क के जो लोगों के मसाइल हैं उनको हल करें और इलेक्शन से आगे निकल कर अब हम सोचें कि आवाम हमारे लिए क्या सोच रही है। तो इसलिए मैं इनका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये वादा किया है कि कल अपनी राब्ता कमेटी से राब्ता करके फिर हमें आगाह करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, बहुत बहुत शुक्रिया। बस ठीक हो गई। इत्तेहादी जमातों की जानिब से सदारती इलेक्शन के लिए तश्कील दी गई कमेटी की MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात के बाद प्रेस टॉक। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि तमाम इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आसिफ अली जरदारी के लिए वोट देने के ताउन का इजहार किया है। हम तवक्को रखते हैं कि आइंदा भी हम आगे मिलकर चलेंगे और मुल्क के मसाइल को हल करेंगे। इसी के साथ ही खबरनामा हो मुकम्मल। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप PTV न्यूज़ के साथ रहे। आपका शुक्रिया।